creating a table. How can we create a table in database? We can create tables in two view, either in design view or in datasheet view. How can you add tables or create a tables in design view? For doing that, we have to click on the design button on the create tab in the tables group. जब भी हम ये करेंगे तो क्या होगा? A table will be created and will be opened in design view. Okay, so we have already see what type of this screen will appear in the screen whenever we are doing that. लैब क्लास में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. From that we have to select the field name and then we can press the tab key or enter key to move to the next window. ठीक है. Where we have to define the field name and then we have to define the data type. What type of data we want to enter for that particular field. Next is the description box. Or what does the description column do? Description column में क्या होता है? We can add description for any particular field in this column. Description column जो होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं? We can add description for any particular field. After defining all the fields, what we have to do? हमें क्या करना होगा? We have to save the table again by clicking on the quick save button on the quick access toolbar or save option from the file tab. जब भी हम करेंगे तो क्या होगा? The save as dialog box will appear where we have to give a particular name and then we have to click on the OK button. Next, we can add data in datasheet view. Okay, we can add data only in datasheet view. How can we add data in datasheet view? We have to click the cell. Suppose the given example from the book that they have taken the table named students, that is having the attributes of roll number, column, roll number, student's name, all those things. So suppose the roll number field has already been selected. So what we have to do? We have to press the tab or enter key after clicking the below cell of the roll number field. Whenever we are doing that, the cursor will move to the next window. Whenever the cursor has or the selected table has moved to the next field, what we have to do again? We have to type the data or the required data. Then again we have to press the enter or tab key to move to the next field. After entering all the required data, we have to save by clicking on the save button from quick access toolbar. Okay. Next, primary key. We have already learned about the primary key or we have already discussed about primary key. Primary key है क्या? Primary key is the unique identification of a table that contains it is a type of short check on the table that every record in this table is unique. So जो भी डेटा प्राइमरी की फील्ड में है वो यूनिक होना चाहिए, कहीं से भी वो मैच नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की. हाउ कैन वी सेट अ प्राइमरी की? देयर आर टू वेज टू क्रिएट और सेट अ प्राइमरी की. क्या करना होगा हमें? जो डिज़ाइन टैब है, कोई भी सिलेक्ट फील्ड को हमें पहले सिलेक्ट करना होगा. जो फील्ड को हम प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट दैट फील्ड फर्स्ट. देन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब वी हैव टू क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, या फिर जो टेबल को जो फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करके वी कैन चूज द प्राइमरी की ऑप्शन. आफ्टर क्लिकिंग एनी ऑफ दोज टू ऑप्शंस, a key logo will be appeared on the field selector button or field selector part of that particular field. field selector part कहाँ रहता है? कोई भी फील्ड का एकदम सामने ही, शुरू में ही. ठीक है. जब भी आप कोई भी प्राइमरी फील्ड को प्राइमरी की के तौर पे सेट कर दोगे तो क्या होगा? इट विल बी showing that there is a key, the key sign will be showing in the field selector part of that particular field. जिसका मतलब क्या है कि ये फील्ड प्राइमरी की के तौर पे सेट किया गया है. हाउ टू रिमूव अ प्राइमरी की? कुछ नहीं करना है, बस उस फील्ड को सिलेक्ट करो, फिर डिज़ाइन टैब में जाके
प्राइमरी की बटन जो है उस पर क्लिक कर दो तो क्या होगा, वो की ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और फील्ड सिलेक्टर बटन में जो प्राइमरी एक की का लोगो आ रहा था, साइन आ रहा था, दैट विल ऑल्सो बी रिमूव. ओके. नेक्स्ट, बिल्डिंग फॉर्म्स. व्हाट इज फॉर्म? व्हाट इज फॉर्म इन MS Access? In general, in our normal life or general life, what is form? A form is a printed document where we have to input various information. Okay. In MS Access also, form is a type of document, digital document or interactive digital document where user can input various information or data to store those data in the database. So, Access provides three basic view to create or to display the form. क्या क्या है? Form view, design view and layout view. These are the three views in which we can display a form. How can we create a form? To create a form, there are two ways. First is form wizard and second one is form tool or form design button. Okay, so how can we create a form using form design or form wizard? For doing that, we have to click on the form wizard option from the forms group. Forms group में जो form wizard बटन है उस पर हमें क्लिक करना होगा. उससे पहले क्या करना होगा, नेविगेशन पेन से हमें जो टेबल सिलेक्ट करना है उस टेबल को सिलेक्ट करना है पहले, जो टेबल को हमें इंसर्ट करना है. एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट बटन we have to click on the form wizard from the forms group. उसमें क्या होगा, the form wizard dialog box will appear. Form wizard dialog box में क्या क्या होगा, you have to choose the particular table name from the tables or queries drop down list. Suppose your database file is having 3 tables, तो tables और queries के जो drop down list है उनमें उन तीनों ही लिस्ट टेबल्स का नाम दिखाएगा. अब जो टेबल्स को रिकॉर्ड सोर्स बनाकर आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहोगे उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद इफ यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन इट विल शो द पर्टिकुलर फील्ड्स फॉर दोज टेबल्स. उस टेबल में जो जो फील्ड है वो लेफ्ट साइड में दिखा देगा. एक फील्ड में एक लेफ्ट साइड में बॉक्स आएगा. उसके राइट साइड में देखो एरो है, सिंगल एरो, डबल एरो, ऐसे करके कुछ एरोज है. उसमें क्या होता है, इफ़ यू वांट टू select all the fields or if you want all the fields to be appeared on the form, you have to click on the double arrow option. और अगर आप एक एक करके फील्ड को ऐड करना चाहते हो, मान लो 5 फील्ड है उस टेबल में एंड यू वांट टू ऐड ओनली 4 फील्ड, तो क्या करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट दैट सिंगल very singly and then you have to click on the single arrow button. Whenever you are clicking on the single arrow button, वो एक एक करके राइट साइड के जो फील्ड है उसमें ऐड होता जाएगा. उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट बटन. इन द नेक्स्ट विंडो फॉर्म विज़ार्ड विल बी आस्किंग यू अबाउट द लेआउट ऑफ योर फॉर्म. उस लेआउट में क्या होगा, जो फॉर्म के लेआउट है, यू कैन चूज द लेआउट फ्रॉम फ्यू गिवन ऑप्शन. अ फॉर्म विंडो और फॉर्म विज़ार्ड ऑप्शन प्रोवाइड 4 बेसिक टाइप ऑफ लेआउट: tabular, columnar, data sheet and justified. In the given example of the book, they have chosen the columnar option and then click on the next button after selecting the particular layout. जब भी आप particular layout को select करने के बाद next button पे click करोगे तो क्या होगा, it will ask you the title for your form. Okay, title देना होगा. Then whatever मॉडिफिकेशन और अपडेशन यू वांट टू डू विद दैट फॉर्म, उस फॉर्म के साथ आप क्या क्या करना चाहते हो. अगर उस फॉर्म को ही मॉडिफाई करना चाहते हो, देयर इज़ अ चेक बॉक्स टू सिलेक्ट दैट. और आप बस फॉर्म कोई भी डेटा व्यू करने के लिए या एंटर करने के लिए यूज़ करना चाहते हो उस फॉर्म को, तो पहले वाला चेक बॉक्स पे टिक करना है, सिलेक्ट करना है. उसके बाद क्या करना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन. जब भी फिनिश बटन पे क्लिक करोगे आ फॉर्म विंडो विल अपीयर. नेक्स्ट वी कैन क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म डिज़ाइन ऑप्शन ऑल्सो. उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू क्लिक ऑन द फॉर्म डिज़ाइन बटन इन द फॉर्म्स ग्रुप ऑफ क्रिएट टैब. जब भी करेंगे तो क्या होगा, अ फॉर्म
A blank form will appeared or will be created and appeared in datasheet view in the MS Access window. पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, सारे एट्रीब्यूट्स, लेआउट वगैरह सब कुछ डिफाइन करना पड़ रहा था, फिर जब फिनिश कर रहे थे तब जाके वो फॉर्म क्रिएट हो रहा था. लेकिन फॉर्म डिज़ाइन में क्या होगा, अगर हम फॉर्म डिज़ाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा. नाउ व्हाट एवर टेबल्स यू आर हैविंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, उसके सारे ऑप्शंस उसके राइट साइड में जो प्रॉपर्टीज पेन है, प्रॉपर्टी शीट पेन है, उसमें आ जाएगा. यू कैन सिलेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन ड्रैग दोज टेबल्स और यू कैन ऐड दोज फील्ड पर्टिकुलर फील्ड टू योर फॉर्म. ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हो फील्ड को, जो राइट साइड में प्रॉपर्टीज पेन है उसमें सारे फील्ड लिस्ट दिखा देगा. उनमें से कोई भी फील्ड को जिसको ऐड करना चाहते हो आप, यू हैव टू सिलेक्ट दैट एंड ड्रैग दैट टू योर मेन फॉर्म विंडो. मेन फॉर्म के जो विंडो है उसमें ड्रैग करके लेके आना है. ड्रैग करके लेके आने के बाद क्या करना होगा, अगर जहाँ पे पर्टिकुलरली आप उसको प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे लाके छोड़ दोगे तो दैट विल बी प्लेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. नेक्स्ट, कंटिन्यू विद द फॉर्म विज़ार्ड और कंटिन्यू वर्किंग विद द फॉर्म विज़ार्ड. उसमें क्या होगा, you can using the form wizard what you can do, you can select what that forms can do. अगर कोई भी एक मान लो कोई भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर आपको इंटर करना है, you can add that field as in the label box as well as text box. तो वही डेटा को आपको सेव करने के लिए there will be 3 options provided by MS Access that I want the combo box to get the values from another table or query. Next, I will type the various values that I want, and last one is find the record on my form based on the value I selected in my combo box. तो इसमें क्या होगा, मान लो नेम फील्ड दिया हुआ है और नेम के साथ साथ उसके नेम एंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉक्स भी दिया हुआ है. तो उसमें क्या होगा, अगर हम ऐसा ऑप्शन चूज करें लास्ट वाला, फाइंड रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई एंटर्ड ऑन माई कॉम्बो बॉक्स. तो कॉम्बो बॉक्स में नेम दिए रखा है और उसके साथ ही एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है. तो अगर हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करें तो नेम में पर्टिकुलर हमें अगर कोई भी रिकॉर्ड ढूंढना है तो ऑटोमेटिकली वो उसी फील्ड का नेम बॉक्स में जो जो डेटा एंट्री है वो शो करेगा. अगर हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो जो वैल्यू हम डालेंगे ओनली दैट विल बी stored in the database. And in the first one I want the combo box to get the values from another table or query. इसमें क्या होगा, कोई अदर टेबल है, कोई एक दूसरा टेबल है या फिर कोई एक दूसरा क्वेरीज है, उनका वैल्यू के साथ अगर मेरा क्वेरी मैच कर रहा है तो डेटाबेस विल रिट्रीव द डेटा और वैल्यूज फ्रॉम दैट अनदर टेबल और फ्रॉम दैट क्वेरी ऑल्सो. आफ्टर दैट we can define the field name where we want to store those values. जो फील्ड में हम उस वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं we have to define that name and after that we have to click on the finish button. After clicking the finish button, next button, what will be asked by the MS Access window, it will be asked that जो फील्ड के बराबर में आप इंटर करें उसके टेक्स्ट बॉक्स में, उसके लेवल बॉक्स में आप कौन सा नाम देना चाह रहे हो. सपोज वी आर इंटरिंग द रोल नंबर फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो जिस बॉक्स में हम इंटर कर रहे हैं उसका वैल्यू तो दे दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर फील्ड में ही जाएगा. अब उसके लिए एक मैसेज भी शो करना है, आप इंटर कर रहे हो रोल नंबर और लिखा हुआ है उसके सामने नाम, तो वो सही दिखेगा, नहीं दिखेगा ना. तो उसके लिए उस सामने वाले बॉक्स का भी एक नाम देना होगा. दैट विल बी आस्क्ड बाय MS Access इन डिफाइन द नेम ऑफ कॉम्बो बॉक्स विंडो वेयर यू हैव टू डिफाइन द विजुअल नेम फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड. Suppose you have typed the roll number, then you have to click on the finish button. जब भी आप finish button पे क्लिक करोगे तो the name you have typed will be shown in the form output window. Next, create and manage queries. How can you create and manage queries in MS Access? So first of all, what is a query? Query क्या है? A query is a database object that helps you to retrieve and view the information from one or more database
tables that meet a specific criteria or a certain condition. क्वेरी क्या है? कोई भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, डेटा रिट्रीव करता है, किसके ऊपर बेस करके, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कंडीशन के ऊपर बेस करके डेटा रिट्रीव करता है एंड विल शो दिस डेटा टू अस. ओके, सो हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, how many types of queries does provides by MS Access? There are 5 types of queries that is provided by MS Access. SQL query, action query, cross-type query, parameter query and select query. These are the 5 types of query that is supported by MS Access. Next, to working with more than one tables, we have to create a relationship or a link between two tables. How can we create a link or relationship between two tables? For doing that, suppose we are having two fields, two tables. Again, that same example, students and marks. Okay, both the students and maths. Both the table is having the same field called roll number. Okay. Now, first of all, we have to open both those tables in datasheet view. Whenever we are opening that in the datasheet view, we have to click. After that, we have to click on the database tools tab. Then in the ribbon, we have to click on the relationships button from the relationships group. जब भी हम relationship button पे click करेंगे तो क्या होगा? The show table dialog box will appear, from where we have to select all the tables that we want to link together. जो tables को हम link करना चाहते हैं उसको हमें क्या करना होगा? Select करना होगा. This database is having only 2 tables, students and maths. So the list is showing only 2 tables. And in the given example, both the tables are selected. And after selecting both the tables, you have to click on the add button. जब भी आप add button पे click करोगे, add button पे click करने के बाद क्या करना होगा? You have to click on the close button to close the show table dialog box. उसके बाद जब भी close करोगे तो क्या होगा? Edit relationship dialog box will appear. अब edit relationship dialog box में से क्या होगा? You have to drag the primary key of the first table to the same field of the next table. यहाँ पे प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर की. तो रोल नंबर को ड्रैग करते हुए कहाँ लेके आना है? दूसरे जो फील्ड है, दूसरे जो टेबल है, मतलब जो मैथ्स टेबल है उसके सेम फील्ड नेम क्या है? रोल नंबर. उस पर ले जाके छोड़ देना है. जब भी छोड़ दोगे तो क्या होगा? एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आएगा. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. जब भी आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो MS Access विल क्रिएट, ऑटोमेटिकली क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज 2 टेबल्स. कैसे पता चलेगा हमें कि वो 2 टेबल रिलेशनशिप में आ गए या फिर 2 टेबल को बीच में लिंक क्रिएट हो गए? बोथ द टेबल विल बी कनेक्टेड विद ए डार्क ब्लैक लाइन. ठीक है, दोनों टेबल को एक ब्लैक लाइन ज्वाइन करते हुए दिख जाएगा तो पता चलेगा दोज 2 टेबल्स आर लिंक टुगेदर. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन on the quick access toolbar to save the relationship for those tables. Next, how can we create a query in design view? To create a query in design view, what we have to do? We have to open the database and then we have to click on the create tab. So whenever we are clicking on the create tab, the show table dialog box will appear. Next, from that show table dialog box, we have to select the record source for our query. Okay, मतलब अगर हम कोई क्वेरी दें तो कोई ना कोई एक टेबल से तो डेटा को रिट्रीव करना होगा. तो उस टेबल को हमें डिफाइन करना है कि कौन से टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं. देन वी हैव टू सिलेक्ट द टेबल फ्रॉम दोज डेटाबेस एंड अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड बटन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन. जब भी करेंगे द क्वेरी विंडो विल अपीयर. जो क्वेरी विंडो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज टॉप पेन एंड सेकेंड वन इज बॉटम पेन. टॉप पेन डिस्प्लेज द टेबल सिलेक्टेड फॉर द क्वेरी. मतलब अगर मान लो क्वेरी 3 टेबल से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो तो तीनों टेबल ही टॉप पेन में दिख जाएगा विद देयर पर्टिकुलर फील्ड्स नेम. और नीचे वाला क्या है? बॉटम पेन का नाम क्या है? डिज़ाइन ग्रिड.
जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वी कैन ऐड द फील्ड्स टू द क्वेरी फ्रॉम हेयर बाय ड्रैगिंग देम इनटू द डिजाइन ग्रिड और बाय डबल क्लिकिंग ऑन देम। तो टॉप पेन में कोई भी एक टेबल का जो फील्ड दिखा रहा है उसको हमें क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके अगर डिजाइन ग्रिड में लाके छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिकली फील्ड में आ जाएगा, क्वेरीज में आ जाएगा। ठीक है।